हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो विच PS चैट ਦੇ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। PS चैट एग्ज़ाम पेपर 2 2021 जो एग्ज़ाम ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਥਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 poles of length 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेग्राउंड। 2 पोल्स है, एक पोल की लेंथ है 6 मीटर एंड दूसरे पोल की लेंथ है 11 मीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, उन्होंने दे फीट दे विच डिस्टेंस कितना है 12 मीटर, then the distance between their tops is, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ these are the 2 pole, this is the first pole, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਪੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਪੋਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੋਲ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 6 ਮੀਟਰ, ਦੂਸਰੇ ਪੋਲ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 11 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 12 ਮੀਟਰ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਹਾਈਟ 6 ਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 6 ਮੀਟਰ। ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ 11 ਮੀਟਰ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 6 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 11 ਮਾਈਨਸ 6 ਦੈਟ ਇਜ਼ 5 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5 ਮੀਟਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਮੀਟਰ। ਨਾਓ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12 एंड ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ। ਸੋ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਐਂਡ ਅਦਰ 2 ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਐਂਡ ਬੇਸ। ਸੋ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਬੇਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 12 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25, 12 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 144, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 169। ਸੋ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13, ਕਿਉਂਕਿ 169 ਦਾ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 13। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 13 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਯੂ ਮਸਟ ਲਰਨ कि 5, 12, 13 अपने को क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर दो साइड्स 5, 12 है तो अदर विल बी डेफिनेटली 13। जस्ट लर्न इट, राइट। सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम हाइट एंड डिस्टेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। सो ये सेट ए का क्वेश्चन है, सेट ए PS TET 2021। सो A रेशो B ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 7:9, B रेशो C ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3:5 ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ A रेशो B रेशो C। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, A रेशो B रेशो C ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। A रेशो B ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7:9, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 7:9 ਐਂਡ B ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ C 3:5। ਸੋ B ਰੇਸ਼ੋ C ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 3:5। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਂਕ ਸਪੇਸਿਸ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ 9 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ 9 ਵੀ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 9, ਜੇ ਇੱਥੇ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 3।
फिर जस्ट अपन की करना है मल्टीप्लाई. सो 5 9s are 45, 9 3s are 27, देन 7 3s are 21. अगर कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दो. 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 15s are 45. सो अपने को जी रेशो आएगी वो कितनी आएगी 7:9:15. सो इस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋल्व कर सकते हो. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Which of the following has no line of symmetry? This question is 104 and this question is 105. Which of the following has no line of symmetry? So as you know, equilateral triangle the सारे sides क्यों नहीं equal? It also has a line of symmetry. Even rectangle has a even isosceles triangle has two equal sides, so it also have a line of symmetry. Rectangle also have a line of symmetry, but scalene triangle have all the sides unequal, so it does not have a line of symmetry. Equilateral triangle have all sides equal, or for isosceles triangle two sides equal, and for this opposite sides are equal. Okay, next we have is name a quadrilateral with rotational symmetry of order more than 1 but not a line of symmetry. अब इनमें से किसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होएगी? सो द आंसर इज पैरेललोग्राम. सो हम इस केस से ही समझ पाएंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री किसकी नहीं है. अब देखिए जैसे कि स्क्वायर है, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल है, सो इसकी क्या होंगी 1 2 3 एंड 4 लाइन ऑफ सिमेट्री. सो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी 4. तो स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री है 4. अब बात करते हैं रेक्टेंगल की. सो रेक्टेंगल की 1 2 लाइन ऑफ सिमेट्री. रोम्बस की भी क्या होती हैं ऑल साइड्स इक्वल, सो इसकी भी कितनी होंगी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. सो बचा क्या पैरेललोग्राम. सो पैरेललोग्राम इस तरीके से होता है, तो इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री. अगर हम इसे ऐसे कट करेंगे तो ये इक्वल हाफ्स में कट नहीं हो रहा है ना, ये इससे मैच नहीं कर पाएगा. ये देखिए ऐसे और ये इस तरीके से. सो इट हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री. अब जैसे इसको हमने कट किया तो ये इक्वल हाफ्स में कट हो रहा है. सो इट डज नॉट हैव अ नो लाइन ऑफ सिमेट्री. सो हम जस्ट इस लाइन से ही आंसर दे सकते हैं कि नो लाइन ऑफ. और रोटेशनल सिमेट्री की भी बात कर लेते हैं. तो स्क्वायर की जो रोटेशनल सिमेट्री होती है, रोटेशनल सिमेट्री, अब बात करते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस के बारे में. इस पे हम डिस्कस करेंगे इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री. सबसे पहले हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं रोटेशनल सिमेट्री, और साथ में हम डिस्कस कर लेंगे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री. प्लीज़ आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर साथ में बैठें ताकि आप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर सकें, ताकि वो आपके लिए यूज़फुल रहे. ये चारों क्वाड्रिलेटर हैं. स्क्वायर के बारे में आपको पता होगा कि इसकी 4 साइड्स, चारों साइड्स इक्वल होती हैं और ये एंगल्स इसके क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं. रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसके भी एंगल ये वाले 90 डिग्री होते हैं. ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है. पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बट एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते. इसके और भी प्रॉपर्टी, इसकी ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के इक्वल होते हैं. और रोम्बस की भी क्या होती हैं ऑल साइड्स इक्वल, और इनके डायगोनल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं. सो स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है 4 और रोटेशनल सिमेट्री होती है 2. रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है 2, रोटेशनल सिमेट्री होती है 2. पैरेललोग्राम की नो लाइन ऑफ सिमेट्री,
राइट, और रोम्बस की 2 लाइन ऑफ सिमेट्री और 2 रोटेशनल सिमेट्री. सो यू मस्ट हैव रिमेंबर दिस. Okay. Next question is, the ratio between length and breadth is 5:4. If breadth is 20 meters less than the length, the perimeter of the field is. अब एक rectangular field है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो दी हुई है 5:4. अब इसको हम मान लेंगे 5x और इसको हम मान लेंगे 4x. अब जो ब्रेड्थ है वो लेंथ से 20 मीटर कम है, मतलब 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 20. ऑब्वियसली ब्रेड्थ कम है तो हम उसको पीछे लिखेंगे और ब्रेड्थ बड़ी वैल्यू उसको आगे लिखेंगे इक्वल टू 20. अब इनको माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20. सो इससे हमें पता लगा लेंथ जो कि 5x है वो कितनी होएगी अपने पास 100, और ब्रेड्थ जो कि है हमारे पास 4x और वो क्या होएगी 80. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड अ पैरीमीटर. पैरीमीटर फाइंड करना है तो 2l प्लस b कर देंगे. 2l प्लस b मतलब 200 प्लस 80. सो 2 मल्टीप्लाई 180, ये किसके इक्वल आ जाएगा 360. तो इस तरीके नाल अपन आंसर आ गया 360 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर ए डेटा द मीन इज 2, द मीडियन इज 3, फाइंड अ मॉड. सो फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन. सो 3 मीडियन हमें दिया है 3, 2 टाइम्स मीन हमें दिया है 2, सो 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5. सो 5 इज द करेक्ट आंसर. The next question is, mean of 5 number is 18. If a number is excluded, the mean becomes 16. The excluded number is. अब बात हो रही है कि mean of 5 numbers. 5 numbers का mean है 18. अब एक नंबर अगर हम एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूड करते मतलब निकाल देंगे, तो कितने नंबर बचे पीछे 4 नंबर. सो उनका मीन कितना है 16. सो ये दिया नंबर, ये दिया वो मीन, और इनसे हम क्या निकाल लेंगे सम. अब आप जानते हो कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है. मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. इससे अगर आप सम निकालना चाहते हो, सम कितना आएगा मीन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो मीन को हम नंबर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई. सो 18 इंटू 5 कितना आ जाएगा 90, 16 इंटू 4 कितना आ जाएगा 64. अगर हम इसको इससे माइनस करेंगे तो माइनस करके कितना आ जाएगा 24. तो द एक्सक्लूडेड सॉरी यहाँ पर 4 की जगह क्या आएगा 10 माइनस 4 6, 26. सो द एक्सक्लूडेड नंबर इज 26. सो द राइट आंसर इज सी ऑप्शन. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. पहले हमारे पास 5 नंबर थे, उनका मीन था 18, सो उनका सम आएगा 90. जैसे हमने उनको मल्टीप्लाई करना है, लाइक सम इज इक्वल टू मीन इंटू नंबर. फिर नंबर है कि 4, क्योंकि एक नंबर एक्सक्लूड हो गया, उसका मीन था 16, उनको हमने मल्टीप्लाई किया 64. उनको अगर माइनस करेंगे जो नंबर एक्सक्लूड किया होगा वो आ जाएगा 26. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं पैडागॉजी से, पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स से. सो पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट जो हमारा PS सेट 2021 में हुआ था इसमें टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें हम खुद से कुछ नहीं सोच सकते. अगर हमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो हमें जैसे अगर हमें उस क्वेश्चन को पढ़ रखा है तो हम उसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, राइट. क्या आप एग्जामिनेशन में उसको सोच नहीं सकते. अगर आपको आंसर आता है देन यू विल डेफिनेटली टिक द आंसर, और नहीं आता तो आप नहीं कर पाओगे. सो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे पैडागॉजी से. सो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करके जाना है. सो 1 लाइनर क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट आंसर्स, अगर आपने वो पढ़ा हुआ है क्वेश्चन. हु इज़ नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री.
अ फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको कहा गया? यूक्लिड, राइट। अगर आपको ये आंसर डायरेक्ट पता है कि ज्योमेट्री के फादर किसको कहा गया, तो यूक्लिड इज द राइट आंसर। सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यू ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स? अब इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं है टीचिंग मैथमेटिक्स के लिए? अब ये हम डिस्कस कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट ए ऑप्शन है यूटिलिटेरियन वैल्यू, बी ऑप्शन है डिसिप्लिनरी वैल्यू, सी ऑप्शन इज इंटेलेक्चुअल वैल्यू, एंड डी ऑप्शन इज रिलीजियस वैल्यू। अब इनमें से विच इज़ नॉट अ वैल्यू ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स? सो यूटिलिटेरियन वैल्यू का क्या मतलब होता है? यूटिलिटेरियन वैल्यू का मतलब होता है कि जो आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो उसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है, होता है रियल लाइफ यूटिलिटेरियन वैल्यू। जैसे अगर हमने कोई चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए प्रॉफिट लॉस पढ़ा, तो हम शॉपकीपर के पास जाते हैं तो वो रियल लाइफ में यूज़ होता है ना। लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट रियल लाइफ में यूज़ होता है, सिंपल इंटरेस्ट रियल लाइफ में यूज़ होता है। सो येस, इट हैज़ अ वैल्यू इन टीचिंग मैथमेटिक्स, सो इट इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वी हैव, उनने पूछे नॉट, मतलब इनकरेक्ट पूछिए। सेकेंड आता है डिसिप्लिनरी वैल्यू। डिसिप्लिनरी वैल्यू होता है कि किसी फील्ड में यूज़ होना मैथमेटिक्स, लाइक किसी अदर सब्जेक्ट में। लाइक अब बात करें हम फिज़िक्स में, साइंस में यूज़ होता है मैथमेटिक्स, सो वो होती है एक तरह से डिसिप्लिनरी वैल्यू। डिसिप्लिनरी वैल्यू क्योंकि बखरी अलग अलग फील्ड्स में क्या क्या यूज़ है उसका, सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट थिंग। नेक्स्ट वी हैव इज द इंटेलेक्चुअल वैल्यू। इंटेलेक्चुअल वैल्यू मीन्स कि इमेजिन करना, क्रिएट करना, रीज़न करना। सो उसका इंटेलेक्चुअली मैथमेटिक्स से हम क्रिएटिविटी आती है, मैथमेटिक्स से रीजनिंग आती है, मैथमेटिक्स से हम हर चीज़ में रीज़न कर पाते हैं, इमेजिन कर पाते हैं। सो इंटेलेक्चुअल वैल्यू ज़रूर आती है, बट रिलीजियस वैल्यू से इसका कोई लेना देना नहीं है। सो मैथमेटिक्स का रिलीजियस वैल्यू के साथ कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज मैथमेटिक्स इज़ नॉट अ फिलॉसफी, राइट। कोई ये मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते। इट इज़, हर चीज़ को हम प्रूफ कर सकते हैं, हम उनको आइडियाज़ के साथ समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इसका आंसर आएगा, राइट आंसर इज रिलीजियस वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स एट सेकेंडरी लेवल? थ्योरम समझाने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है? लेक्चर मेथड, एनालिटिक सिंथेटिक मेथड, लेबोरेटरी मेथड और एडिशनल मेथड। सो थ्योरम्स के लिए लेबोरेटरी मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। लेबोरेटरी में स्टूडेंट नई नई चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं और उनको वो प्रैक्टिकली एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं, रादर की जस्ट थ्योरम को मगअप करना, वो उसको प्रैक्टिकली एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं, राइट। सो लेबोरेटरी मेथड इज़ द बेस्ट। ट्रेडिशनल मेथड इज़ नॉट फॉलोड। लेक्चर मेथड को भी हमें नहीं फॉलो करना चाहिए। फर्स्टली अगर हम उसे प्रैक्टिकली समझाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, और एनालिटिक सिंथेटिक मेथड को भी नहीं यूज़ करना। फिर आता है मैथमेटिक्स फार्मूला कैन बी डिडक्टेड बाय। मैथमेटिक्स फार्मूला को हम कैसे डिड्यूस कर सकते हैं? बाय इंडक्टिव मेथड, नॉट बाय लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में हम उसको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, डिस्कशन मेथड में हम नए नए आइडियाज़ को लेकर आ सकते हैं। अब बात करते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इन साइंस इंडक्टिव और डिडक्टिव से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। इंडक्टिव मीन्स कि एग्जाम्पल से फॉर्मूला बनाना, मीन्स एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की तरफ जाना। वेरस डिडक्टिव में उल्टा हो जाता है, उसमें फॉर्मूला से हमें क्या बनाना होता है, फॉर्मूला से एग्जाम्पल पे आते हैं और कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ आते हैं। मान लीजिए आपको क्लास में जाते टीचर से सबसे पहले 10+2 का स्क्वायर
फाइंड करना सिखाया, लाइक 100 प्लस 4 प्लस ऐसे करके 2 10 इंटू 2, ऐसे क्वेश्चन करवाने के बाद उन्होंने आपको ये फॉर्मूला बताया a प्लस बी का स्क्वायर. सो दिस मैथड इज़ कॉल्ड इंडक्टिव मैथड. और इसमें क्या होता है कि आपको पहले ही फॉर्मूला बता दिया जाता है. फॉर्मूला बता दिया जाता है, जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता दिए क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और उसके बाद उसके रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करवा दी. दैट इज़ कॉल्ड डिडक्टिव मैथड. सो फॉर्मूले को डिड्यूस करना, किसमें डिड्यूस कर रहे हैं फॉर्मूला, इसमें ड्राइव कर रहे हैं, तो ये कौन सा मेथड, इंडक्टिव. अब डिड्यूस से बच्चे डिडक्टिव की ओर जा सकते हैं, बट आपने कहाँ जाना है, इंडक्टिव, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि इंडक्टिव एग्जाम्पल टू फॉर्मूला बनाते हैं. फॉर्मूले को डिड्यूस हम इंडक्टिव मेथड से कर सकते हैं. सो राइट आंसर इज इंडक्टिव मेथड. Next question is a scientific evaluation procedure for mathematics student is based on. Scientific evaluation mathematics के लिए किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, मूल्यांकन करने, किसके ऊपर बेसिस के ऊपर आप करोगे मूल्यांकन. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देके, ऐसे टाइप क्वेश्चन, ओरल टेस्टिंग, ऑल ऑफ द अबव. अब ऐसे टाइप क्वेश्चन की मैथमेटिक्स में कोई रिक्वायरमेंट नहीं. लैंग्वेज में हम ऐसे टाइप क्वेश्चन दे सकते हैं, इंग्लिश हो गया, पंजाबी हो गया, हिंदी हो गया, या कोई भी लैंग्वेज है उसमें हम ऐसे टाइप क्वेश्चन दे सकते हैं. बट मैथमेटिक्स में ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं है. और अगर ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव भी आंसर कभी भी नहीं हो सकता, उसको भी क्रॉस कर देते हैं. अब बात आती है ओरल टेस्टिंग की. ओरल टेस्टिंग हम मैथमेटिक्स में नहीं कर सकते. मैथमेटिक्स में ओरली हम नहीं कर सकते. ओरल टेस्टिंग मतलब सुनना, किसी से मतलब पूछना, है ना, ओरली, लाइक अ कॉन्वर्सेशन. सो इसका आंसर आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप्स. ऑब्जेक्टिव टाइप में हम एमसीक्यू फॉर्म, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में हम असर्शन रीजन टाइप्स क्वेश्चन को आस्क कर सकते हैं. सो आंसर इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. नेक्स्ट वी हैव इज अ मैथमेटिक्स इज अ गेट एंड की of all the sciences. मैथमेटिक्स ताला दरवाज़ा और चाबी है टू ऑल द साइंसेस. इसका मतलब है कि मैथ को साइंस से लिंक किया गया. और एक कोट है, एक, ठीक है, फेमस सेइंग है. एक सेइंग किसकी है, ये फेमस सेइंग है बेकॉन की, ये आपको याद रखना है. किसने बोला था कि मैथमेटिक्स इज गेट एंड की टू ऑल साइंसेस, बेकॉन. ये सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ क्रैम करने हैं. जस्ट गेट एंड की है तो क्या आएगा, बेकॉन. बस इसी तरीके से आपने याद कर लेना है. जी के बी, गेट एंड की, बेकॉन. मैथमेटिक्स साइंस, मैथमेटिक्स इज गेट एंड की ऑफ ऑल साइंस, बेकॉन. बस इस तरीके से आपने इसको याद रख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैथमेटिक्स इज अ मिरर ऑफ सिविलाइजेशन. हु सेड दिस? सो हु सेड दिस? हॉगबेन सेड दिस. सो हॉगबेन ने कहा था कि मैथमेटिक्स सिविलाइजेशन का आईना है, दैट इज़ मिरर है. सो ये किसने बोला था, हॉगबेन ने. बेकन ने क्या बोला था कि वो क्या, गेट एंड की टू साइंसेस. अब मिरर ऑफ सिविलाइजेशन किसने बोला था, हॉगबेन ने. सो यस, ये क्रैम करने आपने, ऐसी चीज़ें क्रैमिंग वाली बहुत पूछी गई थी लास्ट टाइम. ऐसी चीज़ें वैसे कम पूछनी चाहिए, बट इन्होंने बहुत से क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछे. जैसे कि आप देख सकते हैं कि दो सेंग्स तो इसी मैथमेटिक्स में डाल दी डायरेक्ट इन्होंने. चलो आप अच्छे से कर लेना. इस वीडियो पे हम और भी इसी तरीके के क्वेश्चंस करेंगे. नेक्स्ट वी हैव इज प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय. प्रोजेक्ट मेथड किसने डेवलप किया था? अब ये भी अगेन क्रैमिंग है. किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड डेवलप किया था. ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो तब तक के लिए